Hello, 2024 GATE aspirants. Welcome to Unacademy. I have a very good news for you. People are thinking GATE 2024 completed. Why SAR is saying 2024 GATE aspirant? Because ये बहुत खुश खबर है 2024 गेट एस्पिरेंट के लिए. बस 23 को नहीं, 25 को नहीं. Only for those who wrote GATE 2024 exam, for them it is the best opportunity. Airports Authority of India, the most famous public sector unit PSU, and very importantly which recruit every year. हर एक साल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिक्रूटमेंट कर रहा है. कम से कम 75 to 100 पोस्ट एक्सक्लूसिवली सिविल इंजीनियर. पूरा ऐड करने के बाद अराउंड 200 to 250 फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग. हर एक साल एवरी ईयर रेगुलर रिक्रूटमेंट. सो दिस इज द मोस्ट रेगुलर रिक्रूटमेंट पीएसयू थ्रू गेट स्कोर. ये भी इंपॉर्टेंट है ना, नॉट ओनली थ्रू individual recruitment, also through GATE. Means AAI, Airports Authority of India, have two types of recruitments. पहले वो बोलेगा इंडिविजुअल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट, इनका बारे में अभी तक कुछ नहीं इंफॉर्मेशन नहीं है. बट अभी इंफॉर्मेशन आ गया जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट 2024 स्कोर. आपका गेट 2024 स्कोर से रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से. सो AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द मोस्ट कूल, डिसेंट एंड सिक्योर्ड जॉब फॉर गेट एस्पिरेंट्स. ऑब्वियसली नो प्रेशर, नो टेंशन, रेगुलर जॉब. इट विल बी द मोस्ट डिजायरेबल जॉब फॉर एनी सिविल इंजीनियर. सो एज पर AAI recruitment 2024, there are vacancies. So for architecture total 3, civil 90, electrical 106, electronics 278. Wow, this time this many vacancies. See, around 278, 378, 384, 474, 450, around 490 vacancies are there. Total overall 480 plus overall vacancies are there. So even IT also, information technology, IT also 13 vacancies are there. So junior executive for Airport Authority of India, when we come to our own core branch, civil engineer का बारे में बात करने के बाद, सो सिविल इंजीनियर को 90 है ना, अनरिजर्व्ड 40, EWS 6, OBC 22, SC 15, ST 7, so remaining PWBD included. But highest vacancies for electronics and communication branch 278, then electrical engineering 106. This many vacancies given by Airports Authority of India. And see, the vacancies are increasing year by year. AAI recruitment, because there is a huge demand in aerospace, there is a huge demand in flights and airports. So day by day passengers traveling through airport, air journey are increasing. Jobs are also increasing. So it is a good sign. Every year they are increasing the number of openings. So the number of vacancies is tentative and may increase or decrease. A vacancies है ना, it may increase or decrease the vacancies. Candidates applied against vacancies for SC/ST category. कोई कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी रिजर्वेशन का अंदर अप्लाई कर रहा है, इनको कास्ट सर्टिफिकेट इट मस्ट बी ऑन और बिफोर. ए कास्ट सर्टिफिकेट आफ्टर May 1st not valid. Before May 1st or on May 1st is valid. After May 1st is not valid. May 1st 2024 is the last date to get caste certificate. So आपका caste certificate इनका पहले भी बनना चाहिए. 1/5/2024 का पहले भी बनना चाहिए. Those candidates belong to OBC
and they are under creamy layer होगा तो they are not entitled for OBC reservation. They can apply as unreserved. OBC creamy layer वाला सिर्फ unreserved category में अप्लाई करना पड़ेगा. Those belonging to OBC NCL category, OBC non-creamy layer NCL category, they have to produce valid OBC NCL certificate in the central list in the form of appointment. So for the year 2024-2025, Government of India issued OBC non-creamy layer certificate compulsory submit करना पड़ेगा. और आपका एजुकेशन के लिए ओबीसी एनसीएल बना लिया ना, ये वैलिड नहीं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड. स्पेशली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फाइनेंशियल ईयर 24-25 वाला को इनको वैलिड होगा सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी कैटेगरी फॉर्मेट पे. आपका एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कॉलेज एडमिशन के लिए ले लिया ना ओबीसी एनसीएल, ये वैलिड नहीं है. और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस economically weaker section category, they have to submit income certificate, asset certificate for 24-25 issued by competent authority, government authority as per the rules and regulations. ये पूरा सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन. एप्लीकेशन वेरिफिकेशन आपको पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, व्हाट एवर इट में बी, आप पूरा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप में सबमिट करना पड़ेगा. ऑल सर्टिफिकेट्स मस्ट बी गेट बिफोर 1 May 2024. ठीक है. एंड सर्टिफिकेट्स आप ले रहा है ना, लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं, ये हिंदी सर्टिफिकेट चलेगा, इंग्लिश सर्टिफिकेट चलेगा. इफ एनीथिंग issued other than Hindi or English, duly attested copy by notary must be submitted. आपका लोकल लैंग्वेज से कुछ सर्टिफिकेट आ गया, इनको ट्रांसलेट करके हिंदी या इंग्लिश में, and that was duly attested by notary must be submitted. अब आ रहा है देखो, जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर को बीटेक बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर चाहिए. गेट पेपर AR लिखना पड़ेगा, गेट पेपर AR लिखना पड़ेगा. जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए बीटेक सिविल गेट पेपर CE लिखना पड़ेगा. जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए गेट पेपर EE लिखना पड़ेगा. जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गेट पेपर EC लिखना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पेपर लिखना पड़ेगा. एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए CSIT पेपर लिखना पड़ेगा. सो दैट न्यू पेपर एडेड फॉर CSC वाला ये वैलिड नहीं, CSIT ओल्ड पेपर ओनली लिखना पड़ेगा, वो वैलिड हो जाएगा. एंड द क्वेश्चन इज, सर हम 4 सेमिस्टर में है, फाइनल सेमिस्टर में 4 साल में है, लास्ट ईयर फाइनल सेमिस्टर में होगा, क्या करना? यस, यू कैन अप्लाई. सिर्फ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का पहले आपका रिजल्ट आना पड़ेगा. फाइनल सेमिस्टर स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, यू आर अलाउड टू अप्लाई. आपका सर्टिफिकेट मस्ट कम बिफोर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन. आपका रिजल्ट मस्ट कम बिफोर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन. सो आपका रिजल्ट, डिक्लेरेशन, इश्यूएंस ऑफ मार्कशीट शुड बी कंसिडर्ड ओनली बिफोर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन. आपको मिल गया तो कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं होगा नो रिलैक्सेशन ऑन दिस अकाउंट. ओके. एंड कैंडिडेट्स स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained. Percentage, not CGPA. Okay. Then calculated to nearest 2 decimals. Nearest 2 decimal को calculate करके percentage of marks should be applied. So where percentage of marks not allowed by university but only CGPA, OGPA, DGPA, CPA, etc. or letter grade awarded, the same shall be converted to percentage. सो आपका CGPA, OGPA, DGPA, CPI कुछ होगा तो ये पूरा परसेंटेज को कन्वर्ट करके इन टर्म्स ऑफ आपका यूनिवर्सिटी टर्म्स पे, आपका यूनिवर्सिटी टर्म्स पे ये परसेंटेज पे कन्वर्ट करके यू हैव टू प्रोड्यूस परसेंटेज ऑफ मार्क्स. और एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइम पे आपका मार्क लिस्ट और द डॉक्यूमेंट, सपोर्ट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कन्वर्शन, CGPA कन्वर्शन और यूनिवर्सिटी मार्कशीट
आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स का बारे में देखना पड़ेगा. यू हैव टू शो इट. सो मैक्सिमम एज इज 27 ईयर and this must be achieved. There is no minimum age. आप सिर्फ 1 मई 2024 का पहले 27 ईयर होना चाहिए. 27 ईयर नहीं आना चाहिए. If you are higher than 27 years on 1st May 2024, you are not eligible. On or before 1st May. So you must be less than 27 years before 1st May 2024. आपका एज 27 का ऊपर होगा बिफोर 1st May, आप एलिजिबल नहीं. 5 years रिलैक्सेशन फॉर SC/ST, 3 years फॉर OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट as per government norms. So PWBD candidates 10 years relaxation is given, but certificate supported by the government authorities 10 years have been provided. And the date of birth is as recorded in matriculation or secondary examination school certificate. As per that only it is valid. और so dates, important dates, अरे कब अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम है. सिर्फ अभी हम वीडियो दे रहे हैं ना आपको, क्या रीजन है, आप आपका पूरा का पूरा सर्टिफिकेट्स रेडी करके रखने के लिए. टाइम इज देयर फॉर एप्लीकेशन, बट स्टिल वी आर मेकिंग द वीडियो बिकॉज कैस्ट सर्टिफिकेट बनना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनना पड़ेगा, एसेट सर्टिफिकेट बनना पड़ेगा, CGPA कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी से कुछ डॉक्यूमेंट होगा, ये लेके रेडी करना पड़ेगा. इनके लिए अभी वीडियो आ रहा है आपको. ओपनिंग डेट 2 April 2024, क्लोजिंग डेट 1 May 2024. So availability for schedule of application verification it will be announced. एक बात इधर बोलना पड़ेगा आपको, कोई पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन कुछ नहीं. आपका एप्लीकेशन स्क्रूटिनी करने के बाद कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करेगा. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल्ड अप फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन. कुछ इंटरव्यू नहीं, कुछ ग्रुप डिस्कशन नहीं, सिर्फ आपका गेट स्कोर, आपका बीटेक स्कोर से बस आपका एप्लीकेशन डिटेल्स कैंडिडेचर, आपका एप्लीकेशन डिटेल्स कैंडिडेचर से पूरा का पूरा हो जाएगा. देर इज नो स्पेशल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन एज पर द गिवन नोटिफिकेशन. सो पे स्केल 40,000, 3%, 1,40,000. So CTC around 13 lakhs approximately. So it includes DA, HRA, CPF, gratuity, social security scheme, medical benefits, पूरा as per central government norms हो जाएगा बेटा. So CTC दिया ना 13 lakhs per annum approximately. Selection process, पहले candidate age and other eligibility criteria confirm करना पड़ेगा as per 1/5/2024. GATE 2024 candidates in the relevant discipline are only eligible to apply. Then on the basis of application form, candidates shortlisted for application verification. Application verification, the date and whether you are shortlisted or not, आपका official mail, आप official mail लिख सकता है ना application time पे, इनमें आएगा. So every communication is through mail only. Is it clear? आप एप्लीकेशन इतना अच्छे से भर रहा है, ट्रू जेन्यून इंफॉर्मेशन दे रहा है, गेट स्कोर फिल कर रहा है, इंजीनियरिंग CGPA फिल कर रहा है, आपका एकेडमिक्स का बारे में फिल कर रहा है पूरा एप्लीकेशन में, इनसे शॉर्टलिस्ट करके चलेगा. सो फोटोग्राफ ऑफ इमेज नॉट मोर देन 3 months old. Recent passport color photograph not 3 months old. No cap, no hat, no glasses, dark glasses. Okay, not allowed. And religious head were allowed, but not to cover the face. 20 KB to 50 KB, size 200 by 230 pixel. Signature, white paper, black ink pen. White paper, black ink pen. 10 to 20 KB, size 140 to 160 pixel. Sorry, 140 by 60 pixel. So those must be ready, along with application fee for 300 rupees online mode. It must be paid online mode only. Fees submitted by any other mode not accepted.
SC, ST, PWBD candidates, apprentices who have 1 year apprenticeship are exempted from payment of fees. Exempted from payment of fees. ठीक है, 300 rupees application fees. So mostly by that time your gate result also will come. Based on your gate result you can apply for the post. www.aai.aero, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024. और एक बार समराइज कर रहे, अप्रैल 2 से एप्लीकेशन शुरू करेगा. ओनली बेस्ड ऑन योर गेट 2024 स्कोर, बीटेक क्रेडेंशियल आपका एप्लीकेशन फॉर्म से लेके शॉर्टलिस्ट करेंगे. अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म, जेन्युइन इंफॉर्मेशन फिल करो और कैटेगरीज अच्छे से फिल करो. देन ऑल द जेन्युइन इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट करेगा. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल्ड अप फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन. 4th year students eligible to apply, but you have to get your result before application verification और आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. So guys, let's gear up for GATE 2025. Those who have not done well in 2024, देखो इतना बड़ा नंबर ऑफ पोस्ट आ रहा है, इतना भारी वैकेंसी आ रहा है एआई. सो नेक्स्ट ईयर आल्सो, बिकॉज इट इज ए ग्रोइंग इंडस्ट्री ना एयरपोर्ट, सो इतना ग्रोइंग इंडस्ट्री से नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत सारा मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर आल्सो, नो डाउट. और दिस ईयर 90, नेक्स्ट ईयर वी एक्सपेक्ट 100 above for civil and overall we expect 500 above. So do join our courses in Unacademy, GATE and ESC. So I have launched a new subject, environmental engineering, recently February 29, 5:30 p.m. new batch started. So do use our code, universal code KP Civil. Let's enjoy your subject and fulfill your dream of GATE and ESC. Those who want such kind of recruitment notification, information regarding new jobs, new remote unexplored vacancies, so join our Telegram channel KP SAR Students. आपको पूरा इंफॉर्मेशन फुल टू फुल मिल जाएगा. आपका केपी सार से भी मिल सकता है उधर. और पर्सनली बात करने के लिए टेलीग्राम नेम केपी सिविल टाइप करो, मैसेज करो, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा. हम कभी भी आपके साथ है. सो दोस्तों शेयर करो, आपका फ्रेंड्स या फैमिली या रिलेटिव्स किसके लिए एआई यूज हो जाएगा, इनको इंफॉर्मेशन दे दो, इनको गवर्नमेंट जॉब लाने के लिए कोशिश करेंगे. ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट.